ओके सर, मीटिंग हो रही होती है, मीटिंग के कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जी तलावत इधर आगे बैठो कॉर्पोरेट डीपी सेशन है यार जी। आ जाना पटो साहब का कारपोरेट इसका किस चीज में ताल्लुक नहीं है सर अपना काम करने दें ना। अच्छा क्या है जी आपको मैंने तो इज्जत दी आपको सर ये कि मुझे कारपोरेट इन्ना आतीना कल कौसर सल्लेलेगा पेगवंदर इन्ना शानिया का उवलंतर सदकल्लाहु अलज़ी जज़ाकल्लाह। Welcome to corporate briefing session of Fat Textile Mills for the year 2025. I would request our worthy participants to ask questions preferably at the end of the session, and before asking questions they may quote their name and the institution they are representing. Today we have with us our CEO Asad Saifullah Khan sir, and our director Rana Shafi sir, and our executive director Abid Hussain sir, CFO Wasim Aslam sir. They will be presenting the corporate briefing session today. So I would request Wasim sir to give a presentation. Next slide. आप ही हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, उमर शहजाद साहब। Assalamualaikum ji. Welcome to the corporate briefing session of SAP Textile Mills Limited for the year 2025. First of all, start with the introduction. SAP Textile Mills Limited is a public listed company incorporated in 1989 and listed on the Pakistan Stock Exchange. The company is principally engaged in manufacturing and sale of yarn. Manufacturing facilities are located in KPK and head office is located in Islamabad and registered office is in Peshawar. This is the list of our board of directors. Javed Saifullah Khan is our chairman and Saifullah Khan Sahab is our CEO. And SAP Textile Mills has following certifications: 9001 2015 Quality Management System, 14000 2015 Mineral Management System. आपके पास हार्ड कॉपी है? Yes, sir. 1725 is for laboratory accreditation standards. In addition to this, the company is also certified in the following: Global Organic Technical Standards (GOTS), Global Recycle Standards (GRS), Organic Cotton Content Standards (OCS), Better Cotton Initiative (BCI), Ocotex Standard 100, Inditex, and IKEA. Next. Now we move forward towards our key financial highlights. Our net sales revenue was 11.5 billion, gross profit 1.2 billion, EBITDA 1.2 billion, and operating profit 832 million. in the year 2025. Next are our key ratios: debt to equity ratio, current ratio, KIBOR, market value equity, and shares traded. Our shares will increase from 10.76 to 9.08 from 2024 to 2025. And on our next slides, following are some graphical representations of our key figures. These are net sales, gross profit, profit from operations, statement of financial positions, total equity, EBITDA, and और अगर इन सब में देखते हैं तो हमारा 2023 ही हमारा मेन साल रहा है जिसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। 2024 और 2025 जो था हमारा, उसमें हम फिर भी कुछ अपने नॉर्मल की तरफ मूव कर गए।
हमारे जो फ्यूचर स्ट्रेटजीज में 2025 में हमारी जो मेजर चेंजेस आई हैं जो वर्थ मेंशनिंग है और वेरी की चेंजेस हैं। मिस्टर असद सैफुल्ला खान साहब उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रोल रिज्यूम किया है। मिस्टर आबिद हुसैन साहब ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस एंड ऑपरेशंस का रोल रिज्यूम किया है। और ये दोनों हमारे वो मैनेजमेंट है जिन्होंने कोहा टेक्सटाइल मिल्स को पिछले 8 सालों में ऑपरेट किया है और बड़ा सक्सेसफुली ऑपरेट किया है। और यही मैनेजमेंट इस वक्त हमारा सैफ टेक्सटाइल मिल्स को ऑपरेट कर रही है। कंपनी जो सोलर हमारे मेजर इश्यूज है, पावर कॉस्ट हमारी मेजर कॉस्ट थी जो प्रॉब्लम कर रही थी। तो कंपनी ने 10 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट का एग्रीमेंट साइन किया है। उस पर काम उस वक्त चल रहा है और जनवरी 2026 में ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और कंपनी इस वक्त अपनी स्पिनिंग, डाइंग और सर्जिकल कॉटन सब में 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। और यही वजह है कि हमारा जो पहला क्वार्टर है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वो प्रॉफिट में है। अगले ये चलने का मैं कर लूँ वो सर मैं उन्होंने कुछ क्वेश्चन भी भेजे। नहीं एक बात इसको पहले कर जी जी फ्यूचर आउटलुक में पाकिस्तान का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो है वो रिमेन्स मिक्स्ड, शोइंग ग्रेजुअल साइंस ऑफ स्टेबलाइजेशन। Inflation rose in September 2025, mainly on account of higher energy and food prices, while monetary policy and exchange rates have remained broadly stable. Fiscal reforms and improved external inflows are gradually restoring investor confidence. However, energy constraints and still elevated financing costs continue to pose challenges requiring consistent policy attention. To mitigate the impact of the costly energy mix, the company has finalized an agreement for the installation of a 10 megawatt solar power plant. The project is currently in progress and is expected to become operational by January 2026. With the commissioning of the solar power plant, BMR of machines, the development of specialized and value-added products for both domestic and international markets, and the continued implementation of cost-saving measures, the company is well positioned for sustainable long-term growth. Thank you for your questions that I want to kindly please ask. जी इन राइटिंग कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं रीड आउट कर देता हूँ। ये सुलेमान मानिया साहब हैं और इन्होंने क्वेश्चन किया है The return on equity in that business is very low. Why is the management now looking at the textile sector being a sector which continue to face high competition and return on equities will not go up? Does it make sense to move the business away from the textile into something else? लेकिन ये हमारे लास्ट एजीएम में भी डिस्कस हुआ था। जी अच्छा ये हुमायूं राजा साहब हैं जिसने उन्होंने क्वेश्चन किया है Saf Textile carries a substantial debt burden of approximately 6 billion resulting in high financing costs that significantly erode profitability. What is the expected timeline for retiring these loans as it's important to reduce its finance cost? देखें हमारा डेट जो है कोई ज्यादा नहीं है। 6 बिलियन डेट एक कंपनी जो 1,05,000 स्पिंडल्स पे ऑपरेट कर रही है और 15 टन उसकी डाइंग कैपेसिटी हो तो 6 बिलियन डेट कोई ज्यादा नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि कंपनी के ऑपरेशन जो थे कुछ लॉस में थे जो अल्हम्दुलिल्लाह 25 में काफी इंप्रूव हुए हैं और सब्सिक्वेंट टू दैट हमारे जो पहला क्वार्टर आप देखें उसमें इंप्रूव हुए हैं। तो अगर आप इस दूसरी टेक्सटाइल मिल से कंपेयर करेंगे तो ये फिगर आपको कोई ज्यादा या ये फिगर आपको कोई नॉर्मल नजर नहीं आएगी। तो जस्ट ये कि कंपनी अपने सेल का मोमेंटम ले ले और अपने प्रॉफिट्स वगैरह में आ जाए तो ये फिगर आपको बड़ी नॉर्मल नजर आएगी। ठीक है अच्छा दूसरा अब्दुल राफिल जफर साहब हैं उन्होंने क्वेश्चन किया हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट विल बी फुलफिल्ड बाय सोलर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 10 मेगावाट सोलर। देखें हमारी टोटल रिक्वायरमेंट ही 10 मेगावाट है तो हमने 100% अपना सोलर इंस्टॉल किया बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट से कुछ ज्यादा ही है तो इंशाल्लाह इसका बेनिफिट पूरा आएगा। ठीक है नहीं उसमें कितना फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क नहीं रिक्वायरमेंट की बात है। जी क्वेश्चन नंबर 2 है एनी प्लान टू रिटायर सैफ power debt of rupees 1.6 billion or any debt swap plan between SAF Power and KTML? I think he means SPML. SPML. Yeah. ये स्वैप कह रहे थे वो
अच्छा, ये written cohort. नहीं, इसका कोई ऐसा प्लान नहीं है फिलहाल के जो हम जो है सैफ के डेट को केटीएम के साथ स्वैप कर देंगे। और फिलहाल में इसका कोई जो इसकी डेट की रनिंग जो लाइन है, जो हमारी आरएफ लाइन है, वो तो हमारी कंटिन्यू चलेगी। और जो लॉन्ग टर्म लाइन है उसकी रीपेमेंट 2027 में स्टार्ट होगी। और बाकी स्वैप का कोई ऐसा प्लान नहीं है फिलहाल। ठीक। अब्दुल राफिज जफर साहब हैं, वो कह रहे हैं कि 18% सेल्स टैक्स ऑन इंपोर्टेड यार्न इशू हैज बीन रिजॉल्व्ड, व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट मार्जिन इंप्रूवमेंट एज ए रिजल्ट? फर्स्ट क्वार्टर का पता जी सर। जी जी, देखें हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आप देखते हैं तो उसमें आपको बॉटम लाइन और जीपी दोनों का ही मार्जिन की इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। तो इसका बाकी इंडस्ट्री में भी आपको इसकी इंप्रूवमेंट नजर आ रही होगी। I think Akil Saab has a question or hand raise किया है जी, अकील साहब का है। जी, अस्सलाम अकील साहब। वालेकुम। वालेकुम सलाम अकील साहब। सर, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर ये मालूम करना था मुझे कि जैसे आपने कोहाट के अंदर में केस में बताया कि आप लोग स्पेशल यान मैन्युफैक्चर करते हैं, कन्वेंशनल यान मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं। तो जी। अब ये नई नई मैनेजमेंट आई है कोहाट की, तो स्पेंडर्स तो 1 लाख से ऊपर है, डबल से ज़्यादा है मेरे ख्याल से। उनके तो 45,000 थे, इनके लाख से ज़्यादा है ना। तो आप बताएं पहले तो कौन सा यान यूज़ कर रहे हैं, और नेक्स्ट फ्यूचर में आपका क्या प्रोग्राम है कि मार्जिन कैसे इंक्रीज होंगे, कुछ स्पेशलाइज यान आप लेकर आएंगे या कोई फर्दर प्लान है? अ, जी अकील साहब, हमारा भी जो अकील साहब, आपने आधे सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। हमने अपनी सैफ टेक्सटाइल मिल का थोड़ा सा आपको बता दूं, इसका ऑलरेडी कमोडिटी मार्केट से ताल्लुक नहीं है, वहां पे मिलान है जो कोहाट में नहीं है। वहां पे सैफ टेक्सटाइल मिल के अंदर डाइंग प्लांट है और सर्जिकल है जो कोहाट में नहीं है। तो ऑलरेडी हमारी सैफ टेक्सटाइल मिल डाइवर्सिफाई है। अगर इसको सैफ टेक्सटाइल मिल के हिस्टोरिकल डाटा देके 2021, तो ये पाकिस्तान की 10 जो टेक्सटाइल स्पिनिंग फैक्ट्रीज थी उसके अंदर इसका लोकल और एक्सपोर्ट के अंदर नाम था। हमने आज की डेट में उसके अंदर जो चैलेंज था वो था, मेन इशू था एनर्जी का, जिसको एड्रेस कर लिया है और 10 मेगावाट सोलर लगा दिया है। प्रोडक्ट उसकी आपको ऑलरेडी उसमें डाइवर्सिफाई है। तो आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि मसलन 2026 का हम आपको वो फ्यूचर आउटलुक में भी हमने लिखा हुआ है कि आपको सब्सटेंशियल फर्क नजर आएगा। और अभी सोलर के बगैर ही आप देख लें कि फर्स्ट क्वार्टर में उसकी बॉटम लाइन जो है वो पॉजिटिव है, और सोलर का इंपैक्ट अभी नहीं आया क्योंकि उसकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ थी, उसके स्पेशल फाइबर स्पेशल प्रोडक्ट है। और कस्टमर सर बेस टेक्सटाइल मिल से की जो है वो कोहाट टेक्सटाइल मिल से डबल है। ओके। तो सर जैसे कि आपने कहा सोलर आपने 10 मेगावाट लगवाया है, सही ना, ये ग्रॉस नंबर है, और 10 मेगावाट ही आपकी डिमांड है। तो ये तो 20% आपकी नीड सोलर को फुलफिल करेगा, तो 80% फिर भी रिमेनिंग रहेगा। अकील भाई, सोलर दिन के टाइम होता है, तो मैंने जी जैसे कोहाट में आपको कहा था कि सोलर दिन के टाइम रहेगा, और 24 घंटे के ऊपर जब उसको आपका दिन दिन के टाइम तो 100% सोलर चल रहा होगा, लेकिन वो होगा 7 घंटे का। जब 24 घंटों के ऊपर उसको डिवाइड करते हैं तो वो 20% ही लगता है। तो सर जब यही मैं आप कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि 10 मेगावाट की अगर आपकी कंजम्पशन है तो जी, सिर्फ डे लाइट के अंदर 20% एफिशिएंसी आएगी, 80% इन एफिशिएंसी तो रहेगी। नहीं नहीं, अकील भाई वो मिक्स कर गए आप। दिन के टाइम 100% 10 मेगावाट सोलर चल रहा होगा, नो अदर सब्स्टिट्यूट, जी सिर्फ जी। सोलर ही चल रहा होगा। लेकिन रात के टाइम चूंकि बेस का, यानी कि जब तक बैटरी का कोई टेक्नोलॉजी नहीं आती, फिर आपका अल्टरनेट रिसोर्स होगा। तो जब दिन को 24 घंटों पे एवरेज करते हैं तो कहीं पे भी सोलर कंपनी होगी तो वो 80-20 या 70-30 की रेशो बनती है। तो सर 70-30 की बनती है ना, तो सर 30% तो आपको सोलर पे बेनिफिट मिल जाएगा, 70% फिर भी नहीं मिलेगा, आप यही कह रहे हैं ना? जी जी, तो वो अभी रात को तो वो सूरज होगा ही नहीं, तो वो उसका तो बनता ही नहीं सही है है, ना। सही है। तो मतलब वो 100% तो नहीं चेंज हो रहा, मतलब 30% एफिशिएंसी हम मैक्सिमम एज्यूम कर इस लें इसके सोलर अंदर का ना? जब भी कभी किसी से आप क्वेश्चन करेंगे तो सोलर दिन के टाइम ही होगा वर्ल्ड जी वाइड। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सर जैसे आपने बताया, पिछले उसमें बताया था कि आपके कस्टमर इंटरलूप भी मौजूद है, गुल अहमद भी है जैसे कोहाट के अंदर में, तो इसका इसका भी बता सकते हैं कि कस्टमर क्लाइंटेज आपकी कौन कौन है?
इसकी जो वो क्लाइंटेज है, मैंने आपको कहा ना कि डबल देन को हार्ट है, चूंकि कैपेसिटी डबल है, ब्लो रूम की लाइनें और जो प्रोडक्ट और जो टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल है वो डबल देन को हार्ट है, तो इसमें सैफ टेक्सटाइल मिल के अंदर डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है। हम्म। वो हार्ट टेक्सटाइल मिल में डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं है, वहां पे हमारी इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट है, लेकिन सैफ टेक्सटाइल मिल में डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी है। उसके अंदर हम्म। ये सप्लायर वाले हो गए आपके, मसलन कुछ कस्टमर जैसे बोला मत तो बड़ा है, तो मसलन वो एक रिक्वायरमेंट को हार्ट तो पूरी नहीं कर सकता, हार्ट इज जस्ट लाइक अ 47,000 स्पिंडल, तो सैफ टेक्सटाइल मिल भी उनको देता है। इसकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, इसके कोई भी यू जस्ट नेम इट एनी वैल्यू एडेड कस्टमर इन द कंट्री, जो वो फैब्रिक में है या एक्सपोर्ट में है, तो वो सैफ टेक्सटाइल मिल ही उनको सप्लाई दे रही है। सर, अगर आप बता सके कि आपके FY 25 में फ्यूल कॉस्ट पर यूनिट कितनी रही, और आप FY 26 में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी कम हो जाएगी सोलर के इंक्लूजन के बाद? सोलर के मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करूं तो सैफ टेक्सटाइल मिल की एनर्जी कॉस्ट 30% ज्यादा है एज कंपेयर को हार्ट के, तो डिफरेंस इज द ओनली सोलर, तो 2026 में वो 30% इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो सर, अगर 33 रुपीज़ का यूनिट है तो हम ये समझे कि ये 30% कम होकर ये तकरीबन 25 रुपये तक हो जाएगी पर यूनिट। आपका इट वुड बी बिलो 30, मतलब 25 to 28 बेस्ड ऑन फिर एवरेज काउंट चेंज होते रहते हैं। तो हमारा हम्म। टारगेट ये है कि आज की डेट में मेरी कोहार्ट की जो कॉस्ट है वो 28 है, हम्म। क्योंकि वो ओके। आपको पता है ना कि क्लाइमेट चेंज के हिसाब से फिर गवर्नमेंट के भी डिफरेंट चीजें आती हैं, तो इफ अदर थिंग्स रिमेन द सेम तो उसकी कॉस्ट कोहार्ट के बराबर होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। One question is from Abdul Rafi Zafar, and one hand is raised by Umar Saab. So, which one do you want to जी, read मेरे first? ख्याल में पहले उमर सारंग साहब जो हैं वो अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। Assalamu alaikum, sir. Thank you for a great presentation. सर, आपने बताया कि द इम्पैक्ट ऑफ EFS आपके फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट के अंदर आ चुका है, तो आई एम लुकिंग हियर आपकी मार्जिन्स हैव एक्सपेंडेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बाय अबाउट 6%, 9 से 16% हुए हैं। तो ये जो चेंज हुआ है, डू कैन वी एक्सपेक्ट कि ये मार्जिन आगे सस्टेनेबल रहेगा? ऑल्सो अगर यहाँ से आपकी एनर्जी कॉस्ट और भी ज़्यादा गिरती है तो क्या मार्जिन और भी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, या डू यू थिंक इसी लेवल पे सस्टेनेबल है? नहीं, देखिए जी, करंटली तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके मुताबिक तो उसमें कोई फर्दर चेंज अभी ऑन कार्ड्स तो नहीं है, तो इसलिए मार्जिन तो हमारी सस्टेन ही करेंगी। और जहाँ तक एनर्जी की बात है तो एनर्जी सारी बात है उसका, हमारा जनवरी फेब से मैं सोलर का इनपुट आना शुरू होगा। और इसको मैं लिंक करता हूँ जो अब्दुल राफिक जफर साहब ने क्वेश्चन किया है, जो इंक्रीमेंटल इलेक्ट्रिसिटी यूजेज का, वो भी अभी हमारा दिसंबर से उसका बेनिफिट उसका भी स्टार्ट होगा। पॉलिसी में कुछ क्लियरेंस वगैरह भी डिमांड की है इंडस्ट्री ने, तो मार्जिन तो होपफुली इम्प्रूव ही होंगे हमारे। सर, तो प्रीवियसली मेरे ख्याल से आप गैस यूज करते थे फॉर एनर्जी, डू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इफ जी दैट्स जी। द केस, डजंट दैट मीन दैट इंक्रीमेंटल पैकेज के अंदर आपको पूरी इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है कि ग्रिड से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिले? नहीं, देखिए सर, गैस अगर यूज कर रहे हैं तो पार्शली कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी भी यूज हो रही थी, तो जो बंदा गैस यूज कर रहा है उसको तो ज्यादा बेनिफिट होगा ना, क्योंकि उसके इंक्रीमेंटल यूनिट ज्यादा बन जाएंगे। जी जी सर, तो आप क्या उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते? आप क्या पहले फुल ग्रिड पे ऑपरेट कर रहे थे? नहीं नहीं सर, हम फॉल करते हैं उस कैटेगरी में, हमें भी बेनिफिट होगा उसका। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। One question is he's asking, SAF used to operate at 90%. When can we expect 90% capacity? तो ये अक्टूबर से 100% capacity is being utilized. ओके, ठीक है। जबकि ये जो डिस्काउंट वाली बात थी इंक्रीमेंटल, वो ऑलरेडी हाँ जी, उसमें cover हो गया। जी। तो एनी अदर क्वेश्चन? अकील साहब ने सर, वन मोर क्वेश्चन सर। सर, थोड़ा जी। सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता सकते हैं सर, वैसे तो आपकी सेफ टेक्सटाइल की यान की लिस्ट कभी कभार सर्कुलेट हो रही होती है, मेरी नज़र से गुजरती है। बहरहाल मुझे ये मालूम पड़ रहा था रॉ मटेरियल सर, इसके अंदर में आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं डिफरेंट, काफ़ी बड़ी लिस्ट होती है, तो उसके अंदर प्राइजेस के अंदर में रॉ मटेरियल मेनली क्या, कॉटन के अलावा और क्या क्या होगा जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं?
हाँ अकील भाई, सैफ टेक्सटाइल मिल के अंदर आप वो चुके हैं तो लिखा हुआ है कि एनबीपी फंड के हैं, लेकिन आपके पास यान की प्राइस भी आती है। तो यान की प्राइस में आपको ये बता दूं कि किसी भी मिल, स्पिनिंग मिल का पूछा जाता है कि उसके अंदर ब्लोरूम की लाइन कितनी है, तो हमारी सैफ टेक्सटाइल मिल के अंदर 21 ब्लोरूम लाइन है। और कोहाट टेक्सटाइल मिल में ब्लोरूम लाइन है 6, जबकि कैपेसिटी उससे डबल है, तो सैफ में 12 होनी चाहिए थी, वेर एज देयर इज 21। तो इट मींस सैफ टेक्सटाइल मिल एट ए टाइम कैन यूज 21 डिफरेंट टाइप ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर आप उसको वो ट्रेस करना चाहेंगे तो मेरे कस्टमर से, मार्केट से आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि एनी रॉ मटेरियल विच इज अवेलेबल इन द वर्ल्ड, STM previously was using, and now currently we have restarted, rather I should say restarted the use of similar different type of raw material। जो भी आप रॉ मटेरियल का नाम लें, इफ इट इज नेचुरल, if it is man made fiber, STM is able to use that fiber। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। एनीवन एल्स इफ वांट टू आस्क एनीथिंग, एनी क्वेश्चन? अकील साहब का हाथ है फिर। नहीं, वो उन्होंने पूछ लिया है, that's वो he removed it। चलिए, मेरा ख्याल है वी हैव टेकन ऑल द क्वेश्चंस। Thank you everyone। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपकी पार्टिसिपेशन का और अच्छे क्वेश्चंस का। थैंक यू बहुत एवरीवन। शुक्रिया। Thank you। अल्लाह